ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, Telegram, Facebook ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵਾਈਡ ਰਨ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ ਰਨ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਗਸਤ 15 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2 ਦੇ ਲਈ। ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਾਈਡ ਰਨ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਫਰੀडम ਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ? ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਗਸਤ 15 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗਰੁੱਪ? ਡਾਕਟਰ VK ਪੌਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅੰਡਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ CEO ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CEO ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਚੀਵਰਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ CEO ਨੇ ਵਰਟੈਕਸ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ CEO ਨੇ ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? SS ਮੁੰਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ। RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਰਮਰ RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ SS ਮੁੰਦਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕੇਰਲਾ ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਅੰਡਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪਟਨ SS ਛਾਹੜ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਸੀਨ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਜਨ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਆਨਰਿੰਗ ਦਾ ਓਨੈਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਔਰ ਫੇਸਲੈਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਡ ਫੈਟਲਿਟੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2030 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਟਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 2023 ਤੱਕ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਟਰਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਟਰਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। MSME ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, MSME ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ @75 ਸਮਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 2022, ਇੰਡੀਆ @75 ਸਮਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 2022,
जिसनों ऑर्गेनाइज किया गया CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ द्वारा। बेसिकली जिसका फोकस सी री इन्वेंटिंग टैक्नोलॉजीज इन इंडिया। नैक्सट है पहला कंसाइनमेंट भेजा गया किसका 40 मिलीमीटर अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर का। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जिसनों डिज़ाइन किया गया एम्यूनेशन फैक्ट्री पुणे द्वारा और भेजा किसनों गया BSF नूं यानी कि केड़ी सेंट्रल आर्मड फोर्स नूं भेजा गया BSF नूं भेजा गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नूं। मेक इन इंडिया प्रोजैक्ट के अंदर या कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत प्रोजैक्ट के अंदर। नैक्सट है पॉजिटिव पे नाम का फीचर किसने बनाया RBI ने किस दे लई चैक फ्रॉड नूं लभण दे लई। नैक्सट LIC ने स्पैशल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च किया। स्पैशल रिवाइवल कैंपेन उन्हां पॉलिसीज़ नूं शुरू करन दे लई जिहड़ी लैब्स हो चुकियां ने। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसने की किया एक NH रिवॉर्ड्स नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। SBI द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड किस दे लई योनो कृषि बेसिकली फार्मर्स दे लई किसान क्रेडिट कार्ड योनो कृषि ऑप्शन के अंडर लॉन्च किया गया। यू ओनली नीड वन योनो की फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। HDFC बैंक ने शौर्या KGC कार्ड लॉन्च किया। शौर्या KGC कार्ड किस दे लई आर्मड फोर्सिस दे लई इंडियन आर्मड फोर्सिस दे लई शौर्या KGC कार्ड जिस दे अंडर 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम दिता जाएगा और यह ट्राई कलर्ड कार्ड होएगा। नैक्सट है लोक सभा द्वारा फ्रेंच नूं शुरू किया गया एज इट्स न्यू लैंग्वेज ताकि स्टाफ और ऑफिशियल्स नूं फ्रेंच सिखाई जा सके। लोक सभा द्वारा इसनूं शुरू किया गया इंप्लीमेंट किया गया प्राइड द्वारा। प्राइड की फुल फॉर्म है पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी जिसनूं 1976 दे विच बनाया गया सी। नैक्सट है INX ग्रुप इंडियन टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर होएगा टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए INX ग्रुप ऑफिशियल स्पॉन्सर होएगा इंडियन टीम के लिए। इस तो इलावा यह अनाउंसमेंट की गई है इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा 1927 के विच बनाई गई सी। न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है और नरेंद्र बत्रा इस दे हैड। नैक्सट है IIT रोपड़ द्वारा एक डिवाइस बनाया गया UV सेफ डिवाइस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि UV सेफ डिवाइस किस IIT द्वारा बनाया गया IIT रोपड़ द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 170 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए IIT दिल्ली नूं। किसनूं IIT दिल्ली नूं किस दे लई ताकि वह एक टैक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनावे रोबोटिक्स के उत्ते कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स यानी कि कोबोटिक्स के लिए एक टैक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनावे IIT दिल्ली। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वैसल बनाया सार्थक नाम के पेट्रोल वैसल नूं लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। के नटराजन इस दे हैड ने याद रखने। डाइट पुणे द्वारा 2 चीज़ां बनाई गई एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति और दूसरा एक एंटी माइक्रोबल बॉडी सूट औषधा तारा। डेल टेक्नोलॉजीज़ ने की किया नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के नाल मिलके स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 शुरू किया। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के नाल मिलके शुरू किया। हरभजन सिंह ब्रांड एंबेसडर बनाए गए ने ई बाइक गो के ब्रांड एंबेसडर हरभजन सिंह। डॉक्टर स्वप्नील पारीक डॉक्टर राजेश M पारीक और महारेरा देसाई तिन्ना ने मिलकर एक बुक नू लॉन्च किया द कोरोना वायरस वट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक। तिन्ना ने इस बुक नू लिखा है और इस बुक नू लॉन्च किया गया मुकेश अंबानी और नीता अंबानी द्वारा। द कोरोना वायरस वट यू नीड टू नो अबाउट ग्लोबल पैंडेमिक। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्राज़ील द्वारा
एक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया रशिया दे नाल। अगर आप कल की गल करिए, कल आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस कीतियां सी, उन्हां दी हजे आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उस तो बाद चलांगे अज दी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। ब्राज़ील ने रशिया दे नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? कोविड-19 वैक्सीन जो कि स्पुतनिक 5 रशिया द्वारा बनाई गई है उसकी प्रोडक्शन और मार्केटिंग दे लई। चाइना की गल करिए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग द्वारा क्लीन योर प्लेट कैंपेन, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लीन योर प्लेट कैंपेन किहड़ी स्टेट द्वारा किहड़ी कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना द्वारा। किस दे लई? फूड क्राइसिस नूं रोकण दे लई। इजराइल की गल करिए, इजराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम, एक बेसिकली एक मिसाइल नूं टेस्ट किया है, एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल नूं टेस्ट किया गया इजराइल द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा एरो 2 मिसाइल किहड़ी कंट्री की है? इजराइल की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने की करिया? अनाउंस किया 1 मिलियन की असिस्टेंस अनाउंस की एंटीगुआ और बरबूडा नूं। एंटीगुआ और बरबूडा इस कंट्री नूं 1 मिलियन की ग्रांट कोविड-19 के लिए अनाउंस की गई। किस दे? बेसिकली इंडिया कैरीकॉम समिट दे विच। एंटीगुआ और बरबूडा सेंट जॉन्स की इसकी कैपिटल है और डॉलर इत्थे करंसी चलती है। सेंट जॉन कैपिटल है एंटीगुआ और बरबूडा की। नेक्स्ट है इंडिया अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 500 मिलियन। इंडिया ने 500 मिलियन अनाउंस किए ग्रेटर माले कनैक्टिविटी प्रोजैक्ट के लिए। ग्रेटर माले कनैक्टिविटी प्रोजैक्ट जिहड़ा कि माले नूं 3 नेबरिंग आइलैंड्स दे नाल कनैक्ट करेगा। बेसिकली इस दे विच 100 मिलियन एज ए ग्रांट दिता गया और 400 मिलियन एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है स्टड की गल करिए, स्टड ने एशिया का लार्जेस्ट हैलमेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा के विच लगाने की अनाउंस किया है। स्टड कंपनी द्वारा एशिया का लार्जेस्ट हैलमेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा के विच लगाया जाएगा। पंजाब रिलेटेड आप 2 न्यूज़ डिस्कस कीतियां सी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर द्वारा पंजाब स्मार्ट कनैक्ट स्कीम लॉन्च की गई है स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करवाने के लिए। इस तो इलावा पंजाब ने फर्स्ट रैंक हासिल किया हैल्थ और वैलनेस सेंटर्स ऑपरेशनलाइजेशन दे विच, यानी कि हैल्थ और वैलनेस सेंटर्स नूं चलाउण दे विच फर्स्ट रैंक हासिल किया है पंजाब द्वारा, जिहड़ा डाटा रिलीज़ किया गया सेंट्रल गौरमेंट द्वारा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गौरमेंट ने नैशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध जिसनों मिल्कफेड द्वारा बनाया गया है, ये लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश द्वारा। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इन्होंने एक नवा स्टेट लोगो लॉन्च किया रांची दे विच एक नवा स्टेट लोगो लॉन्च किया इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जिस दे विच वाइट एलीफेंट्स ने, फ्लावर है, पलाश डांस की एक मूर्ति बनी हुई है। वेस्ट बंगाल द्वारा कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम वेस्ट बंगाल द्वारा शुरू की गई है टू प्रोवाइड लोन्स एंड सबसिडीज़ टू यूथ। नेक्स्ट है अहमदाबाद दे विच गुजरात दे बेसिकली अहमदाबाद दे विच 2 ब्रिजिज बनाए जा रहे हैं जिन्हां दे नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम के उत्ते रखे जाएंगे। वेस्ट बंगाल की गल करिए, वेस्ट बंगाल दे विच हीरो आई लीग फुटबॉल की एक लीग हीरो आई लीग हैल्ड की जाएगी कोलकाता वेस्ट बंगाल दे विच। अनाउंस किया गया AIFF द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन द्वारा, जिसनों 1937 दे विच बनाया गया सी। दिल्ली दे विच हैडकुआटर है और प्रफुल्ल पटेल इसके हैड ने। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम इसनों शुरू किया गया सेंटर ऑफ 4th इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च किया गया तेलंगाना हैदराबाद दे विच सेंटर ऑफ 4th इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा मिलके। नेक्स्ट है तेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसनों लॉन्च इन्होंने लॉन्च किया एक अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया गया गुवाहाटी दे विच। रिसेंटली यह चेन्नई और मुंबई दे विच हैल्ड किया गया सी। गुवाहाटी ऐसी तीसरी सिटी बन गई है इंडिया दे विच, ठीक है जी, ये याद रखना है।
असम गौरमेंट द्वारा ही एक स्कीम लॉन्च की शुरू की गई है, अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम जिसनूं शुरू किया जाएगा अक्तूबर 2 तो, ताकि 17 ਲੱਖ पूअर फैमिलीज़ ਨੂੰ 830 रुपये पर महीना दिते जा सकन। 830 रुपये पर मंथ इस स्कीम के अंडर दिते जाएंगे, अरुणोदय स्कीम के अंडर। किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा? असम गौरमेंट द्वारा। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी सैलीब्रेटेड 59th एनिवर्सरी ऑफ डी जूर ऑन 16 अगस्त। 16 अगस्त नूं 16 अगस्त नूं किहड़ी यूटी द्वारा अपनी 59th एनिवर्सरी बनाई गई डी जूर की। डी जूर यानी कि बेसिकली अपना कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे। पुडुचेरी द्वारा की होया कि जिहड़ी पुडुचेरी सी ये किस दे अंडर आती सी? जो अगर आप गल करिए इंडिया के उत्ते किहड़ी किहड़ी फॉरन कंट्रीज़ का डोमीनेंस सी? पुर्तगीज, यूरोपियन, डच और फ्रेंच। ठीक है जी। जिहड़ी पुडुचेरी सी ये फ्रेंच के अंडर सी। पुडुचेरी यूटी सी जिहड़ी ये फ्रेंच के अंडर सी, फ्रेंच के अंडर आती सी। और इसनूं छुड़ाउण दे लई इसनूं छुड़ाया गया 16 अगस्त नूं। 16 अगस्त नूं फ्रांस के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया जिसनों डी जूर के नाम तो जाने जाता है। तो डी जूर 59th एनिवर्सरी किस दिन ऑब्जर्व की गई? 16 अगस्त पुडुचेरी की। वी नारायण स्वामी इस दे हैड, वी नारायण स्वामी इत्थे चीफ मिनिस्टर ने और IPS किरण बेदी इत्थे दी गवर्नर ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन with ISRO has developed sustainable process to make space bricks on lunar space। बेसिकली की होया कि मून दे उत्ते अगर फ्यूचर दे विच सोचा जा रहा है कि फ्यूचर दे विच मून दे उत्ते बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, तो उन्होंने बिल्डिंग्स को बनाने के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाई गई हैं, क्योंकि सिंपल ब्रिक्स उत्ते काम नहीं करनगियां, तो उत्थे स्पेस ब्रिक्स बनाई गई ने। इस स्पेस ब्रिक्स नूं किस दे नाल मिल के बनाया जा रहा है? इसरो ने किस दे नाल मिल के बनाया है? IISc बेंगलुरु दे नाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दे नाल मिल के इसनूं बनाया जा रहा है। ठीक है जी। अगर आप इस तो इलावा एक होर न्यूज़ डिस्कस करते हैं इसरो रिलेटेड ही। इसरो ने 12 अगस्त नूं 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की विक्रम साराभाई की। विक्रम साराभाई एक स्पेस साइंटिस्ट, अगर आप गल करिए इसरो के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट और इंडिया के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट स्पेस साइंटिस्ट ने विक्रम साराभाई। ठीक है जी। इन्हां दी 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, जिसनूं ऑब्जर्व करने के लिए जिहड़ा चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया सी। चंद्रयान 2 मिशन द्वारा जिहड़ी मून की पिक्चर्स लित्तियां गई सी, उन्हां दे विचों कुछ पिक्चर्स रिलीज़ कीतियां गईयां। बेसिकली पिक्चर्स रिलीज़ कीतियां गईयां क्रेटर्स दियां। क्रेटर्स हुंदा है कि अगर कोई तुसीं देखिया होगा कि कोई एस्टेरॉयड डिगदा किते तां एक खड्डा हो जाता है, उस खड्डे नूं क्रेटर नाम दिता जाता है। ठीक है। तो मून के उत्ते काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के खड्डे ने, तो उसकी इमेजिज रिलीज़ कीतियां गईयां और उसनूं नाम दिता गया साराभाई क्रेटर। याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डाइट का हैडकुआटर पुणे के विच है, DRDO का हैडकुआटर दिल्ली के विच है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च IIT कानपुर की गल करिए, इन्हों द्वारा रिसेंटली मोबाइल मास्टर जी और शुद्ध डिवाइस डेवलप किया गया सी। याद रखने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दीक्षक फॉर प्रोवाइडिंग E-क्लासरूम फॉर टीचर्स। टीचर्स नूं E-क्लासरूम प्रोवाइड करवाने के लिए E-क्लासरूम प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया गया दीक्षक डेवलप किया गया किसना द्वारा डेवलप किया गया? IIT खड़गपुर द्वारा दीक्षक डेवलप किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बेस्ड सिस्टम बनाया सीगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए IIT खड़गपुर ने। IIT दिल्ली ने क्योरोसोर नाम का डिवाइस बनाया सी IIT दिल्ली ने। इस तो इलावा आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं 170 करोड़ कोबोटिक्स के लिए दिता गया IIT दिल्ली नूं। IIT बॉम्बे डिजिटल आईस सिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया सी IIT बॉम्बे द्वारा।
IIT ਰੋਪੜ, IIT ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IIT ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡ ਬੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ UV ਸੇਫ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਯੂਨੀਸੇਵੀਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਸੇਵੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ fourth meeting of which group's anti-working group held recently in which Indian delegate led by Rakesh Asthana, Director General of Narcotics Control Bureau NCB, basically ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹ? ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ 2020 ਦੇ ਲਈ 12th ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 13th ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ SCO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020 ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਸੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਸੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 36th ਸਮਿਟ 36 ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ G20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, G20 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2020 ਦਾ ਸਮਿਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ, 22 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੋਨ 2020 ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ? ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ 2020 ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ 2020 ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੋਲਟਰੀ ਬੋਟਾਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਆਸਟਰੀਅਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੁਆਰਾ 4 ਜਿੱਤ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਟਰਾਈਰੀਅਨ, ਹੰਗਰੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ। ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ 70th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰਿਕਸ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫਰਿੰਗ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਬੌਂਡਸ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ IRDAI ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ G ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ICC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲੀਵਾ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ QR ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। R ਨਾਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ ਆਡੀਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। R ਨਾਰਾਇਣਾ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ। G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ, G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਨਾਊਂਸਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ? ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ?
किहड़े क्रिकेटर द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन, MS धोनी और सुरेश रैना द्वारा, यानी कि बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। MS धोनी और सुरेश रैना इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो रिटायरमेंट अनाउंस की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज़ रैंकड बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी? केड़ी यूनिवर्सिटी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार, एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार केड़ी यूनिवर्सिटी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार जामिया मिला इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिला इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली दे विच है, यह बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक लवे है, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। सैकेंड प्लेस ते इस दे अनुसार राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रही है जो कित्थे है? अरुणाचल प्रदेश दे विच, अरुणाचल प्रदेश दे विच। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस दे विच थर्ड प्लेस ते रही है जो कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने की करे एक इलैक्ट्रॉनिक मास्क डेवलप किया है। इलैक्ट्रॉनिक मास्क बेसिकली ये की करेगा, कुछ वेव्स ट्रांसमिट करेगा जिस नाल की होएगा कोविड-19 नू तो बचा जा सकता है, कोविड-19 तो बचा जा सकता है, या कह सकते हैं कि कोविड-19 अगर आस-पास दे एरिया उस मास्क के नाल आस-पास दे एरिया नू डिसइनफैक्ट किया जा सकता है। और इस मास्क नू किस द्वारा डेवलप किया गया? जादवपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी द्वारा। और ये कित्थे है? कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच है, कोलकाता वैस्ट बंगाल दे विच है। नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंसड टू लॉन्च प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन? अगर आप गल करिए प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर नू 1973 दे विच लॉन्च किया गया सी। ठीक है, टाइगर्स नू बचाने दे लई प्रोजेक्ट टाइगर कंजरवेशन दे लई 1973 दे विच लॉन्च किया गया। हुण सिमिलर प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया जा रहा है असिस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर नू किन्ना द्वारा लॉन्च किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनू लॉन्च किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने 15 अगस्त वाले दिन इसनू अनाउंस किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है जी, इस तो इलावा पंजाब की याद रखना है इंदुस रिवर डॉल्फिन, इंदुस रिवर डॉल्फिन पंजाब दे लई याद रखना है, पंजाब का स्टेट एनीमल है इंदुस रिवर डॉल्फिन। रामनाथ कोविंद प्रेजिडेंट ने इंडिया के, M वेंकैया नायडू इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट ने। ठीक है जी, ये याद रखना है। इन्हों के लिए एक बुक रिलीज़ की गई है रिसेंटली, राजनाथ सिंह ने इन्हों की टर्म के 3 साल पूरे होने के 3 साल पूरे होने के उत्ते राजनाथ सिंह ने एक बुक रिलीज़ की है और उसका वर्जन रिलीज़ किया गया प्रकाश जावेदकर द्वारा। इस तो इलावा सहजान मुजीब नू ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया अलीगढ़ मुनीसिपल कॉरपोरेशन का, अलीगढ़ मुनीसिपल कॉरपोरेशन। और यह पहली ऐसी मुनीसिपल कॉरपोरेशन बन चुकी है जिसने अपना ब्रांड एंबेसडर अनाउंस किया है। अलीगढ़ मुनीसिपल कॉरपोरेशन ने सहजान मुजीब नू अपना ब्रांड एंबेसडर चूज़ किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है जे सत्यनारायणा। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। और इसका जे सत्यनारायणा दे नाल की लिंक है कि इसका जोड़ा ब्लू प्रिंट है, यानी कि इसनू बनाया किसने है, इसनू एक कमेटी बनाई गई सी जिन्होंने हैड किया सी जे सत्यनारायणा द्वारा। द ब्लू प्रिंट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट इज़ मेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर UIDAI चेयरमैन यूनीक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड के नाल जिहड़ी अथॉरिटी है UIDAI उसके फॉर्मर चेयरपर्सन जे सत्यनारायणा द्वारा इसनू जुलाई 2019 दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने नैशनल डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट जारी किया कि किस तरीके नाल इस प्रोजेक्ट नू स्कीम नू लॉन्च किया जाएगा। और इसनू लॉन्च किया गया फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है जी, ये याद रखना। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, केड़ी कंट्री तो ताइवान ने परचेज किए 66 F-16 जेट्स, 66 F-16 जेट्स केड़ी, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि F-16 जेट्स केड़ी कंट्री दे ने।
ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇ? USA ਦੇ। USA ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ, USA ਤੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ 66 F-16 ਜੈਟਸ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ। ठीक है जी। इस तो इलावा जिस तरीके ਨਾਲ पूछा जा सकता है कि अपाचे हैलीकॉप्टर्स, चिनूक हैलीकॉप्टर्स कित्थे दे ने? ये कित्थे दे ने? ये भी USA दे ने और इंडिया ने ये बाय किए सी USA तो, अपाचे और चिनूक हैलीकॉप्टर्स। अच्छा, UK की गल करिए, UK की COP26 समिट हैल्ड की जाएगी ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, जिसके हैड UK द्वारा ऋषि सुनक नहीं, आलोक शर्मा नूं अपॉइंट किया गया। ऋषि सुनक UK के ही फाइनैंस मिनिस्टर ने, ऋषि सुनक UK के ही फाइनैंस मिनिस्टर ने, इंडियन ओरिजन ने, इस करके नाम इंपोर्टेंट बनते। स्पेन और नीदरलैंड, स्पेन की गल करिए COP25 समिट हैल्ड किया गया सी स्पेन दे विच। इस तो इलावा स्पेन और नीदरलैंड मिलके 2022 दे विच वूमेन हॉकी चैंपीयनशिप हैल्ड करनगे। वूमेन हॉकी वर्ल्ड कप हैल्ड किया जाएगा, स्पेन और नीदरलैंड द्वारा होस्ट किया जाएगा। सिमिलर 2023 दे विच इंडिया दे विच मैनस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा। मैनस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया दे विच 2023 दे विच। रशिया की गल करिए, रशिया की कैपिटल मॉस्को है। इत्थे दे प्रेजिडेंट ने व्लादिमीर पुतीन 2036 तक इत्थे दे प्रेजिडेंट रहणगे। प्लस इन्होंने रिसेंटली स्पुतनिक 5 नाम की कोविड-19 वैक्सीन अनाउंस की है, जिस दे रिलेटेड इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है ब्राज़ील के नाल। ब्राज़ील के नाल मार्केटिंग और प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस्ड टू लॉन्च पढ़ाई तुम्हार पारा स्कीम स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है, ताकि वह अपनी रिस्पैक्टिव लोकेशन के उत्ते स्टडी कर सकन। किहड़ी स्टेट द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा पहले भी एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम सी पढ़ाई तुम्हार द्वार। हुण लॉन्च की गई है पढ़ाई तुहार पारा। ठीक है जी। इस तो इलावा इंदिरा वन मित्र योजना भी रिसेंटली लॉन्च की गई सी छत्तीसगढ़ द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई सी। गोधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ द्वारा ही लॉन्च की गई सी। और एक स्कीम रिसेंटली आप डिस्कस की थी, तेंदूपत्ता रिलेटेड सी कुछ, महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता स्कीम, समथिंग इस तरीके की स्कीम सी। इसनूं भी छत्तीसगढ़ द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने, अनुसुईया उइके इत्थे दे गवर्नर ने। MP की गल करिए, अगर आप दीदी व्हीकल स्कीम शुरू की गई सी, दीदी व्हीकल प्रोजेक्ट, किल कोरोना कैंपेन लॉन्च किया गया सी। और भी काफ़ी स्कीम्स ने, कल आप डिस्कस की MP दी। गुजरात की स्कीम याद रखनी है वहीली डिक्री योजना। यूपी रिलेटेड याद रखना है काउ स्लॉटर एक्ट नू रिसेंटली अमेंड किया गया सी। और बिहार ने जरदालू मैंगो प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी यूपी ने लॉन्च की सी। जरदालू मैंगो और शाही लीची के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी बिहार ने। किसदे नाल किया सी? इंडियन गौरमेंट दे नाल। इस तो इलावा कुछ स्कीम्स ने वो डिस्कस करते हैं, होर न्यूज़ ने MP रिलेटेड। सब तो पहले MP ने की करा एक स्पैशल कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश। जिस तरीके ਨਾਲ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत लॉन्च किया सी, सिमिलर तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ने अपनी स्टेट के लिए गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश यानी कि फ्री इंडिया एंड मध्य प्रदेश फ्रॉम गारबेज इसनू लॉन्च किया। इस कैंपेन नू लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। गुजरात हाई कोर्ट ने फाइलिंग ऑफ केसिस शुरू किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने केसिस नू फाइल करने के लिए शुरू किया है, ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू की है। और स्टेटस चैक करने के लिए अंडर ईमेल माई केस स्टेटस सर्विस के अंडर इन्होंने बेसिकली केसिस की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू की है गुजरात हाई कोर्ट ने। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस विक्रमनाथ रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, याद रखने। यूपी रिलेटेड अगर डिस्कस करिए तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। किस दे विच? कोविड-19 टेस्ट कंडक्ट करने दे विच। अगर आप गल करिए यूपी के सब तो ज़्यादा पापूलेशन भी है, इंडिया की सब तो ज़्यादा पॉपूलर कंट्री है, तो इस दे रिलेटेड 36 लाख टेस्ट यूपी हुण तक कर चुका कोविड-19 दे। और सब तो ज़्यादा टेस्ट करने के लिए यूपी फर्स्ट पोजीशन के उत्ते आ चुके हैं।
नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च येलो चेन। येलो चेन एक सिंगल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया येलो चेन, यानी कि जिसके अंडर लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ਨੂੰ प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली एमाजोन फ्लिपकार्ट के वांगू एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया येलो चेन, जिसके उत्ते जी लोकल चीज़ां ने, लोकल बिजनेस और लोकल प्रोडक्ट्स ने वो बेचे जाएंगे। किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं शुरू किया गया? नागालैंड द्वारा। ठीक है जी, नागालैंड कैपिटल कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने। और इस तो इलावा अगर आप गल करिए नागालैंड की, तो नागालैंड दे विच हॉर्नबिल फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। ठीक है जी, बाकी कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लेने आ। मेघालय के याद रखना चैरी ब्लूजम फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बेसिकली कह सकते हैं DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसने की किया पार्टनरशिप की ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज़ के नाल। ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज़ बेसिकली USA की एक कंपनी ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज़ के नाल एग्रीमेंट साइन किया ट्रांसपोर्ट सर्विसिज को बैटर करने के लिए। सो याद होएगा आप हुणे डिस्कस किया क्विक रिवीजन के कि नितिन गडकरी ने अनाउंस किया कि 2030 तक जीरो रोड फैटलिटीज़, यानी कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं होएगा, इस तरीके की रोड्स बना दी जाएंगी। सिमिलर तरीके का एग्रीमेंट DTC ने, दिल्ली ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज़ ने नाल किया ताकि दिल्ली के उत्ते दिल्ली दे विच रोड दे जिहड़े एक्सीडेंट रेट रिड्यूस किए जा सकें। नैक्सट है मणिपुर। मणिपुर दे विच इंडियन रेलवे वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज बना रही है, रेल ब्रिज। इंडिया का टॉलेस्ट रेल ब्रिज मणिपुर के बनाया जा रहा है। किहड़ी रिवर के उत्ते? इजाई रिवर के उत्ते। 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडियन रेलवे वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज कित्थे बना रही है, किहड़ी स्टेट दे विच? मणिपुर दे विच। किहड़ी रिवर के उत्ते? इजाई रिवर के उत्ते। और उसकी हाइट कितनी है? 141 मीटर, 141 मीटर की। और यह किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी कि इस टाइम सब तो ज़्यादा बड़ा या टॉलेस्ट कह सकते हैं ब्रिज कित्थे है? यूरोप के विच है 139 मीटर का। 139 मीटर का वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है इस टाइम यूरोप के विच। और इस रिकॉर्ड को तोड़ के इंडिया के विच मणिपुर के विच बनाया जा रहा है रिवर इजाई के उत्ते 141 मीटर्स। किस द्वारा? इंडियन रेलवेज द्वारा। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।